friends, welcome to a new channel. In previous video, I have explained about the lapping of the valves. I'm going to see in actual. So this is a cabinet door of CO2 room. In this door, two mechanism is there. One is master control valve mechanism and pilot valve mechanism. So this is opened by the chief engineer. While opening, make sure that all the engine room or pump room is evacuated properly. It should be unmanned. Uh, During opening, when the chief engineer opens this cabinet door, alarm, visual and audio alarm will run uh, through on the bridge and through all the shipyard. So I'm not going to open this cabinet door. Maybe alarm will ring, or as per the order, we are not supposed to open this. So I am going to open this CO2 room. Let's see inside is there. So as they see, there is so many CO2 bottle is there. यहाँ पे ये पाइप सब एक कॉमन लाइन में ऊपर जा रहे हैं, इसको देखते हैं। ये कॉमन लाइन। So this two is pilot bottle. It number is increased as per the size of the ship, and this is a main bottle. So it is attachment of cabinet door. See, there is a pulley arrangements is there. One is for master valve and one is for pilot valve. So initially, uh, chief engineer will operate this master valve and it is open. Now, when master valve is open, then pilot valve mechanism is going to be operated. So when it is operated, the pulley it has a timer delay in form of cylinder. When pilot valve is operated, this cables attached with the hollow cutter. It will cut the bursting disc of the pilot bottle, and the CO2 inside the pilot bottle will release in the cylinder, and a time delay mechanism will start. As as in the diagram, we have seen that the cylinder is there and a cylinder with a plunger. Pilot bottle will going to operate this plunger, and by this plunger the cable of the main cylinder bottle will going to operate. The hollow cutter of the main cylinder bottle will cut the bursting disc, and our whole system, whole CO2 in. So it is also called a gang release system. So I'm going to explain how CO2, what is inside the CO2 bottle and how it works. So let's go. Kita buka, ya kan? So for engine room, we have to go to the cabinet for cargo hold in the CO2 room and open the cabinet door for CO2 release. So for CO2 release, for cargo hold, there is a separate panel cabinet, and alarm for cargo hold will be activated and cargo hold vent fan will be stopped. Obat, ya. Lalu So these are the separate lines going for each hold, and they will be marked for which hold they are, and that valve we will have to open manually, as we will see. alarm kan, baru ini ditarik. Setelah itu You can see these lines are there for each valve, and this by operating these valves, we can open the lineup for whichever holds. 5 holds generally we have on the ships, and then it will be mentioned which bottles and how many bottles are required for each hold, as we saw. So as per that, we have to open the bottles manually. So these pipes are, you can see how they are connected manually in this system.
So this locking pin we will remove and push the plunger. So when pilot valve is not opening, so this plunger valve will not be open because it will be locked from here. So this plunger is CO2 is not opening, so from this line will not be opened. Pipe here is to take out the CO2 from the safety membrane. As you see, this is the same for the missing cylinder. So you disconnect from here and then you rotate from here. Don't worry, because the safety जो एक Yes, सेफ्टी yes. मेम्ब्रेन रहता है उसमें वो सिलेंडर का गैस को एक्सेस नहीं होने देता है. तो दैट प्रोसीजर आई थिंक इज एक्सप्लेनिंग. Yeah, but he wants to see that कार्गो होल्ड के लिए अलग ग्रुपिंग है सिलेंडर हेड सिलेंडर्स की. उसका जो कॉमन मैनिफोल्ड में जैसे ये दिखाया है ऊपर, अभी आप अभी दिखा रहे हैं वीआरओ से, तो ये ऊपर एक कॉमन मैनिफोल्ड में कनेक्टेड है. और जैसे ये बस्टिंग डिस्क जो अपना पुश करके इसको जो हाथ से मैनुअली आप जो है इसको रिलीज पिन को रिलीज लॉकिंग पिन को रिलीज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वहां से, क्योंकि लॉकिंग पिन से वो जो प्लंजर है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, लॉक हो जाता है. उसको पिन को आपको निकालना पड़ेगा. पिन को जो दिया हुआ है यहाँ पर पिन, तो निकाल के आप उसको जो है हाथ से जो है हैंडल रहता है, हैंडल से आप पुश नीचे पुश करेंगे, पुल करेंगे तो वो बस्टिंग डिस्क बस्ट हो जाएगा और गैस रिलीज हो जाएंगे. तो ये प्योरली मैनुअल ऑपरेशन है. इसमें इंजन रूम सिलेंडर में भी लॉकिंग पिन होते हैं, लेकिन उसको ऑटोमेटिक ऑपरेट करना, इसके लिए उसको हमेशा निकाल के रखा जाता है. वेयरएज आपका जो कार्गो होल्ड के लिए होता है उसमें लॉकिंग पिन लगे हुए रहते हैं, या नहीं भी लगाए लगे हुए रहते हैं उसमें उसको, क्योंकि उसको आपको CO2 रूम के अंदर जाके ही ऑपरेट करना है. तो मैनुअल ऑपरेट करना है तो मैनुअली आप उसमें पिन निकाल के उसको लीवर को पुल करके वो CO2 को रिलीज करते हैं आप. तो yeah, so दैट इज because उसमें लॉकिंग पिन लगे हैं तो इसीलिए वो ये कॉमन सिस्टम से जाके वो दूसरे बॉटल्स पंचर नहीं होते हैं, बिकॉज हाँ ये नहीं CO2 होते हैं. सिस्टम के अलग है, तो इसमें पिन लगी हुई है तो वो पंचर नहीं होगा. पिन नहीं होगा, पंचर होगा. ये भी सेफ्टी है क्योंकि ये कार्गो होल्ड के लिए डेजिग्नेटेड है, तो इट विल नॉट मिक्स अप विद उसका इंजन रूम वाले उसमें से नहीं जाएगा. एंड देयर इज अ आइसोलेटिंग वाल्व आल्सो बिटवीन, सो इट विल नॉट मिक्स अप विद द इंजन रूम सिस्टम. इंटरमीडिएट आइसोलेटिंग वाल्व भी रहता है बीच में, उसको भी आपको खोलना पड़ेगा. Yeah, intermediate isolating valve for separating the cargo hold and engine room. This thing is also there, and we have to open these pins for the bottles so that they don't release automatically by for engine room, because cargo hold we can see how much fire is there or something, and as per that condition physically we can open bottle by bottle, but engine room we cannot see much. We have to fully this, and there is oil and all, so that's why we have this complete pins. complete gang you have to open. So as we saw that dip tube is there for so that to try to get the latent heat of vaporization from the surrounding of outer CO2. So this is your drip tube and this is your liquid CO2, which is high pressurized. So after giving away the heat, the outer liquid CO2 will freeze and form dry ice. So if drip tube is not there, the liquid will form dry ice. वाटर होता है उसमें, उसके अलावा भी अगर हम उसको डाल दे क्या उसे नॉर्मल उसमें डाल एयर तो कोई दिक्कत है क्या? तो पायलट वाटर में अगर वो डाल नॉर्मल एयर तो नहीं, सिलेंडर में भी CO2 ही रहना जरूरी है, क्योंकि एयर इफ यू आर प्रेशराइज्ड एयर बॉटल आप उधर रखेंगे तो एयर जो है आपका CO2 को डाइल्यूट कर देगा. जो पायलट सिलेंडर से जो CO2 निकल रहा है वो पूरा का पूरा ही तो जाने वाला है, उससे वो मिक्स होने वाला है CO2 से. तो होल CO2 बॉटल जो है वो पूरा रिलीज होगा. एक बार प्रेशर वाल्व खुल गया तो होल सिलेंडर गोइंग टू रिलीज,
वो CO2 में अदर CO2 का जो सिस्टम है उस पर जाके वो डाइल्यूट कर देगा, तो उसका फिर पर्पज नहीं रह जाता ना। तो इसीलिए द कंप्लीट राइट फ्रॉम द कंट्रोल बॉक्स टू दी जो CO2 रूम में जो CO2 बॉटल्स है, पायलट्स बॉटल्स है, उसमें सब में CO2 सिस्टम ही रहता है और प्रेशर भी सबका सेम रहता है, 6 बार रहता है पूरा प्रेशर आपका, राइट फ्रॉम दी कंट्रोल बॉक्स to the pilot bottle in the CO2 room and to the main cylinder जो होते हैं अपने रिलीज सिलेंडर्स, उसमें सब में 6 बार रहता है प्रेशर। टेस्टिंग प्रेशर नहीं, टेस्ट के लिए टेस्ट प्रेशर 250 बार पे जो है सिलेंडर को, जो है एम्प्टी सिलेंडर को टेस्ट किया जाता है, हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है, सो दैट इसकी स्ट्रांगनेस, इसका कितना स्ट्रांग है और कितना प्रेशर रेजिस्ट कर सकता है, उसके लिए उसको टेस्ट करके रखते हैं। दैट इज फॉर सेफ्टी रीजन। By the way, आपका by some reason if it is pressure is exhaust CO2 is expanded and severe pressure generates inside this thing, so that it should be this the wall of this cylinder should be so thick or so strong, it should resist and it should not burst. So for that, bottle stamped at 52 bar pressure. So सारा system, Busting- full system is 52 bars and testing pressure is 228 bar. 28 बार हाइड्रोलिक टेस्टिंग 228 बार। और इसका जो डिस्क जो ऑपरेट होता है, जो डिस्क बस्टिंग डिस्क सेफ्टी वाल में जो उसके सेफ्टी वाल में या जिधर भी है, यदि ओवर प्रेशर हो गया तो 177 पे बस्ट हो जाएगा, इन केस यू आर नॉट ऑपरेटिंग। Okay, but you have this Purifier, aeromacration and medium pressure pipes at 80 bars hydraulic and low pressure pipe 7 bar. लाइन है वो 7 बार का ही होता है, 7 या 8 बार का प्रेशर होता है, उससे हम लाइन टेस्ट करते हैं। और if you are testing at 7 अपना कुकिंग गैस का भी अपन जो LPG के सिलेंडर हम लोग घर में लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है 32 बार और दिस थिंग। तो जो कंप्रेस्ड जो CO2 है विच इज इनसाइड द सिलेंडर, वो उसका प्रेशर जो है वो मेंटेन करते हैं 52 बार। जब ये रिलीज होना सिस्टम शुरू हो जाता है तो प्रेशर स्लोली कम्स डाउन एंड इट इज एक्चुअली जो कॉमन मैनिफोल्ड में जाते जाते इसका 6 to 7 बार ऐसा हो जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, फंक्शनिंग इज सच, बिकॉज जो कंप्रेस जो CO2 है उसका प्रेशर 52 बार बताया है, correct which exists inside the cylinder. correct ब्लोअर होते हैं उसके अंदर, मतलब CO2 रूम में जो है आपके एग्जॉस्ट ब्लोअर्स होते हैं, तो वो ब्लोअर से जो है उसका पर्जिंग आउट होता रहता है CO2 रूम के अंदर का। और दूसरी बात, इसका लोकेशन इंजन रूम से थोड़ा दूर होता है, तो बल्कहेड जो है does not become so hot. So that's how we maintain temperature, or the temperature should not go beyond 35 to 36 degrees Celsius. We should maintain from 22 to 35, 36 degrees Celsius. Yeah, So, maximum temperature written here is 55. So ambient temperature basically we have to maintain. ambient, yeah. And Ambient blowers are temperature, it is also removing comfortable. the toxic gas in case any leak or something Yes. is there. So that is also Yes, there. yes. For that also the venting arrangement is there. So it is maintained there. Yeah, you have to treat it like an enclosed space and entry. You have to start Correct. blowers before entry. In case Correct. there is leak. Before going in, you have to start exhaust blower. So actually there is an arrangement given in the door. The moment you open Yeah, the you open the door water tight, automatically. It will start. automatically the blower will start. Yeah, this limit is there. When the door closing, the switch will close. So the Switch switch is at the limit. door. Limit switch is there. Emergency light and the door. Yes. प्लेटफॉर्म होता है और स्टीयरिंग प्लेटफॉर्म में CO2 रिलीज आई थिंक इट इज नॉट देयर। Yes. But CO2 because even if it is released CO2 in engine room, वो स्टीयरिंग फ्लैट के डोर से नीचे वो होके कुछ तो जाए चला ही जाए। अब वो तो कुछ भी हो सकता है। अब एक बार पायलट जहाज में आ गए तो every 5 years we are supposed to measure the weight of the CO2 bottles in case they have gotten lighter due to release. तो सर आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपने कभी किया था ये चीज? हमारे मतलब शिप में जो CO2 के जो
मेंटेनेंस जो टीम होती है शोर से, हम लोग रिपोर्ट करते हैं कंपनी को कि भाई हमारे CO2 बॉटल्स का जो है अभी टाइम हो गया वेइंग का, क्योंकि दिस इज द रिक्वायरमेंट, सेफ्टी रिक्वायरमेंट। आप किसी भी और दूसरा ब्रिज में रहेगा। यस, दूसरा ब्रिज में रहेगा और कंट्रोल ब्रिज रूम पे में भी रहना रहता है। चाहिए। रहना तो ब्रिज में भी रहना चाहिए, चीफ इंजीनियर के कैबिन में रहता है, लेकिन एक कंट्रोल रूम में भी रहता है, इंजन कंट्रोल रूम में। ओके। 3 लोकेशन में होना चाहिए, है ना? ठीक है। आप पहले तो चाबी का जनरली अभी जो रूटीन में जो जाता है उसको तो पता है, ये चाबी है, मैं ले गया, उसको ले गया। लेकिन जो जनरली किसी को अब्रप्टली किसी चीफ इंजीनियर बोल दिया आप जाके चेक करो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। पहली बात तो उसको चाबी को लोकेट करना पड़ेगा। पॉस चाबी का गुच्छा है, उसमें आप कैसे लोकेट करेंगे? उसमें बकायदा टैग होना चाहिए। यदि टैग नहीं है तो CO2 रूम की करके उसमें लिखा होना चाहिए। आप चाबी ले गए, चाबी से आपने खोला, पर वो लॉक जो है उसकी मेंटेनेंस होना भी बहुत जरूरी है। बहुत छोटी चीज है ये, बट लॉक की लोग मेंटेनेंस नहीं करते हैं। ताले को निकाल के उसका बाकायदा उसको चेक, क्रीजिंग करना, चेक करना। एनीवे, चलिए ताला आपने खोल लिया, उसके बाद वही ब्लोअर तो पहले चालू रखना पड़ेगा 10 मिनट तक। नहीं, आप ब्लोअर देखिए, आपने डोर खोला, अभी अभी हमने डिस्कस किया, मिस्टर जितेंद्र ने भी कहा कि जैसे डोर खोलेंगे तो वो एक लिमिट स्विच रहता है उसके अंदर, ऑटोमेटिकली ब्लोअर चालू हो जाएगा। ओके। है ना? अच्छा, ब्लोअर चालू करने से भी पहले ब्लोअर का जो अपटेक का फ्लैप रहता है उसके ऊपर, हाँ, वो खुला है। वो भी चेक करना पड़ेगा कि हवा आ रही है कि नहीं, फ्लैप खुला है कि नहीं, या वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड है। क्योंकि आप भी कोई भी फ्लैप जो अपटेक होता है वो ऐसा ओपन नहीं होता है, उसके ऊपर कोई फ्लैप होगा या फिर कुछ कवर होगा, नहीं तो आपका ऊपर से पानी भी गिर सकता है, वो डैमेज कर सकता है। तो उसके ऊपर फ्लैप होगा या कोई भी होगा ब्लोअर का, इनटेक का फ्लैप जो होता है, जो भी है, इनटेक या आउटलेट का जो भी है, ठीक है, उसको चेक कर लिया और लिमिट स्विच चेक किया, उससे दरवाजा खोलते ब्लोअर चालू हुआ कि नहीं ये मेक श्योर करना, क्योंकि लिमिट स्विच भी स्टक हो सकता है। लिमिट स्विच जो है वो भी जाम हो सकता है ना। आपने खोला दरवाजा, लिमिट स्विच से वो ब्लोअर चालू नहीं हुआ, तो आपको पहले दरवाजा खोल देखना है कि ब्लोअर चल रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जस्ट नॉर्मल जनरल विजुअल चेक करेंगे। ऑपरेटिंग पैनल, उसका जो पायलट वाल का जो पैनल है, सब बॉटल्स है, लूज तो नहीं हुए। देन उसका जो पाइपिंग है, देन पिस्टन वाल है। उसके बाद ये अगर जो कार्गो की लाइंस आती है सैपलिंग वाली, तो वो भी चेक करेंगे कि वो कोई निकला हुआ तो नहीं है। नहीं, आपको अलार्म भी चेक नहीं, आपको नहीं अलार्म नहीं, आपको अभी टेस्टिंग करके नहीं बोला, आपको जनरल इंस्पेक्शन के लिए बोला। आप खाली जाएंगे अंदर और इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो आपको ये देखना है, कि जितने भी सारे सिलेंडर्स हैं ऊपर, जितने भी ये सिलेंडर, जो सिलेंडर हेड आपके हेड वाल माउंटिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, आप इस माउंटिंग्स में कहीं भी किसी ने गलती से पिन तो नहीं, लॉकिंग पिन तो नहीं लगा रखा है। कभी कभी उससे 5 दिन पहले सेकेंडरी ने प्रेशर टेस्ट किया, लाइन टेस्ट चेक किया, जल्दी में चला गया और उसने पिन छोड़ दिया, तो हो सकता है एक आध पिन छूट गया हो। तो आपको पिन जितने भी हैं एक ट्रे में रखे होंगे उसको काउंट करना है कि भाई जितने भी सिलेंडर से उसी के मैच करते काउंट से पिन है कि नहीं उधर, है ना। और जितना भी ये सब चीजें जो जितनी भी आपकी लेबल है वो सब क्लीन है कि नहीं, साफ सुथरा विजिबल है कि नहीं है, इंस्ट्रक्शन विजिबल है कि नहीं है, और आपके जितने भी नट बोल्ट्स हैं फ्लैंजेस में वो रस्टेड तो नहीं है, मतलब खुल सकते हैं कि नहीं, और जितने भी सिलेंडर्स हैं उसके ऊपर जो लेबल लगे हुए हैं आपके, कितने कब मेंटेनेंस हुआ, क्या हुआ, वो सारे इंटैक्ट है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, कोई निकल तो नहीं गया है, कोई पीलअप तो नहीं हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत मैटर करती है ना। तो ये सारा कुछ, और जनरल इंस्पेक्शन करने के बाद में आपको देखना कोई लीक का स्मेल तो नहीं आ रहा है अंदर, हो सकता है कहीं लीक कर रहा हो। आपके पर्जिंग आउट करने के बाद भी पहली बात तो जब आप ब्लोअर चलाएंगे तो थोड़ा वेट करना दरवाजे के बाहर, आपको एंट्रेंस से पहले हो सकता है कोई गैस आपको एकदम CO2 कहीं रिलीज हुआ है, लीक कर गया है, वो आपको हार्म कर सकता है। उसको मेक श्योर करने के बाद में
जनरली तो कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन टेस्ट, ऑक्सीजन मीटर लेके जाना चाहिए, चेक करना चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा स्मेल करके भी जज कर सकते हैं। तो ये अंदर जाके सारा विजुअल इंस्पेक्शन करना है, कोई डैमेज ना हुआ हो पार्ट, कोई बल्क हेड वगैरह, कोई ऐसी चीजें, तब इंस्पेक्ट, और इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीटली इन लेवल, और उसके चेकलिस्ट अपडेटेड है कि नहीं है पूरे, भाई चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए वो सब टाइम टू टाइम है कि नहीं, वो जितने भी ये कंट्रोल बॉक्सेस वगैरह हैं, इसकी जो लॉक है वो बराबर इंटैक्ट है कि नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है बहुत मैटर करती है। हम लोग इन चीजों को बाईपास कर जाते हैं, हम लोग इन चीजों देखते नहीं, छोड़ो यार ये तो देख लिया, एक नजर घुमा लिया, हो गया। तो दैट्स हाउ द थिंग इज। Przemek pokaże wam, jak to i co się sprawdza. ये वीकली चेक्स हैं सर, CO2 रूम के सब दिखा रहा है। ये जनरल इंस्पेक्शन करेक्ट। और टेस्टिंग और चेक में थोड़ा अलग अलग चीजें हैं। और इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम होता है, जो इमरजेंसी लाइट्स चल रहे हैं कि नहीं वो भी देखना पड़ता है हमें। Construction CO2